اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ. تو ہم لوگ جو ہے سورہ ملک کی جو اپنی اسٹڈی کر رہے تھے، سو ہم لوگوں نے we did it till آیت نمبر 11 isn't it؟ 11 yes. آیت نمبر 11 میں جو ہم پہنچے تھے وہ ہم کہاں پہنچے تھے کہ جو لوگ وہاں پہ جہنم کے باہر کا سین دکھایا گیا تھا نا، کہ جو لوگ جہنم کے باہر کھڑے ہوں گے وہ کیسے ریگریٹ کریں گے. وہ ریگریٹ کریں گے اور کن چیزوں کو، دو چیزوں کو ریگریٹ کریں گے کہ وی وش کہ ہم سنتے اپنے اور ہم عقل سے کام لیتے، یعنی ہم اپنی عقل کو یوز کرتے، ہماری جو ایبلٹی ٹو ہیئر اور ایبلٹی ٹو تھنک تھا نا اس کو ہم پراپرلی یوز کرتے. اور کہتے ہیں کہ جیسے وہ سارا جو آپ کی جو لائف ہوگی نا وہ ایک فلیش بیک میں آپ کے سامنے آ جائے گی کہ آپ کو کتنے چانسز ملے تھے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، چاہے وہ مسلم ہو یا نن مسلم ہو، کسی نہ کسی زندگی میں کسی نہ کسی اسٹیج پر سنواتے ضرور ہیں کہ جو حق ہے، جو حق ہوتا ہے نا، جو صحیح بات ہوتی ہے نا، وہ آپ تک کسی ذریعے سے پہنچی ضرور ہوتی ہے. مے بی اٹ از ون آف دا خطبات یو اٹینڈیڈ، کہ یا آپ کو کوئی آپ نے درس اٹینڈ کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس کوئی یوٹیوب کا کوئی ویڈیو آتا ہے، کوئی واٹس ایپ کا لنک آتا ہے، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ضرور چانس آتا ہے، ٹی وی پہ کبھی کوئی پروگرام آ جاتا ہے اور آپ اس کو سنتے ہو، اور آپ نے یا تو یہ ڈیسائیڈ کیا، یا تو آپ اس کو اگنور کر دیتے، یا تو آپ اس کو دیکھتے ہی نہیں ہو، یا تو آپ چینل چینج کر دیتے ہو، یا آپ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیتے ہو اور کچھ اور لگا لیتے ہو، یا دوسرا آپشن کیا ہوتا ہے کہ آپ سنتے تو ہو لیکن آپ اس کو اگنور کر دیتے ہو. آپ بولتے ہو کہ نہیں، آئی تھنک ابھی آئی ڈونٹ نیڈ ٹو چینج ناؤ، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو برنگ دس چینج ان مائی لائف ناؤ، آئی ایم ٹو ینگ. ابھی تو جب میں 50s میں 60s میں جاؤں گی تو میں سوچوں گی کہ میں اپنے اندر چینج لاؤں. ابھی تو چاہے پہلے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، پہلے میں حج کر لوں. اس قسم کی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہمیں روکتی ہیں، اور یہ ساری جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ شیطان کے اٹیکس ہوتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے وہ فلیش بیک کے اس میں ہمارے سامنے آئے گا. مطلب جو بھی، اللہ نہ کرے کہ ہم ادھر کھڑے ہوں، لیکن جو لوگ اس وقت ریگریٹ کر رہے ہوں گے تو وہ ان کے سامنے ایک فلیش بیک آ جائے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں پتا تھی، ہمیں سب ہمارے سامنے یہ ساری باتیں لائی گئی تھی، ہمیں سب بتایا گیا تھا، لیکن ہم نے چوز کیا کہ ہم نے اس کو نہیں سننا اور نہ ہم نے اس کے بارے میں سوچنا ہے. پھر جو ہے جو ہم نے ایک اور بات جو لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں ان آیات میں جو 6 to 11 والی آیات ہیں اس میں کہ consequences of being کافر، ان کو جو ہے ان کے ایک گناہ کی وجہ سے جو ہے نا، یہ جو ورڈ نہیں ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، یہ جو ایک گناہ، زم جو ہے نا وہ سنگولر ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا لاسٹ ویک بھی کہ زم جو ہوتا ہے وہ سنگولر ہوتا ہے، اس کا پلورل ہوتا ہے ذنوب. تو ان کا جو ایک گناہ ہوگا، کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو خود ہی مارجن دے دیتے ہیں، اسپیس دے دیتے ہیں کہ اگر ایک کا چیز نہیں بھی کی تو چلے گا. تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ گناہ کون سا ہو سکتا ہے جس پہ آپ کی پکڑ ہو جائے. یہاں پہ دکھایا اللہ تعالیٰ ایک گناہ کی بات کر رہے ہیں. کچھ اسکالرس نے کہا ہے کہ وہ کوئی بھی کہ وہ ایک گناہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انہوں نے میسنجرز کی بات اور ان کے میسیجز کو جھٹلایا تھا، اور کچھ کے حساب سے وہ کوئی بھی ایک گناہ ہو سکتا ہے. تو اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں، لیکن اگر وہ واقعی میں کوئی بھی ایک گناہ ہے تو وی کین سی کہ ہم کتنے بڑے لاس میں ہو سکتے ہیں کہ ہم کوئی ایک گناہ تو کرتے بھی نہیں ہیں. ہماری زندگی میں تو ملٹیپل جو ہے نا گناہ جو ہے وہ شامل ہیں. پھر جو ہے نیکسٹ، اب اس کے ہم اس پہ جاتے ہیں آیت نمبر 12 پہ. ان الذین یخشون، ان الذین، ان مینس indeed, الذین those who یخشون they fear. یخشون کیا ہے؟ present ہے past tense ہے؟ present tense ہے. اور کیا ہے؟ plural singular plural ہے نا. اونا جو ہے آپ کو بتا رہا ہے plural ہے، اور یا بتا رہا ہے کہ یہ present tense ہے. یخشون ربہم، their رب. ربہم کیا ہوتا ہے؟ their رب. پتا ہے نا کہ ہم نے اس کی پوری ڈرل بھی کی تھی ربہم کی. اگر میں بول رہی ہوں کتابہم their book، رسولہم their رسول، تو جو ہے ربہم their رب، بالغیبی with the unseen، لہم
For them maghfirah, forgiveness, and ajr is reward, and kabir is great. So Allah Ta'ala कह रहे हैं कि those who fear their Rabb with the unseen, for them is forgiveness and a great reward. ठीक है ना? अच्छा, अब सबसे पहली जो इनकी जो क्वालिटी बताई गई है जिनके लिए ये चीज है, उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? यख्शौना रब्बहुम, वो अपने रब से यख्शौना रब्बहुम बिल गैब, यानी अनसीन। हम में से किसी ने अल्लाह को देखा? नहीं। अगर हम अपने ईमान को देखें तो ना हमने अल्लाह को देखा है, ना हमने मलाइका को देखा, ना हमने एंजल्स को देखा है, हमने तो रसूलों को भी नहीं देखा। हमने रसूलों में किसी ने हम में से देखा किसी ने एक रसूल को? नहीं, हमने रसूलों को भी नहीं देखा। हमारा तो ईमान उन पर भी गैब का ईमान है। हमने जो किताबें जो अल्लाह ताला ने जो बुक्स भेजी हैं, कुरान तो हमारे सामने है, लेकिन जो पिछली बुक जिन पे हम ईमान लाते हैं, हमने उन बुक्स को भी नहीं देखा। ठीक है ना? हमने जहन्नुम को नहीं देखा, हमने जन्नत को नहीं देखा, तो हमारा तो पूरा मामला जो है वो है ही गैब पे, अनसीन पे है। और इसी अनसीन पे जो की बेस पे जो हम अगर जो इंसान अनसीन की बेस पर अपनी लाइफ को करेक्ट करता है, यानी वो देखता है कि कोई भी नहीं होता उसको देखने वाला। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता, लेकिन हम फिर भी सही करते हैं, हम रॉन्ग नहीं करते, गुनाह नहीं करते। तो उसकी वजह क्या होती है कि हमारा ऑफ आवर बिलीफ इन unseen. We know that Allah is watching us. Maybe we can't see him, but he is still there. He is watching. हमारा ईमान है हम कि हमारे दो फरिश्ते हैं, है ना? हमने उनको देखा? नहीं, हमने उनको भी नहीं देखा, बट हमारा पूरा बिलीफ जो भी चल रहा है ना, जो भी हमारी एक बिलीवर, एक मोमिन की जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है, वो बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ इन अनसीन। और दिस इज नॉट इजी, दिस इज नॉट जोक। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी पार्ट है हमारी ईमान का, कि हमारा जो भी हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं वो हम अपने इस बिलीफ की बेस पे कर रहे हैं। तो जब हम कुछ भी करते हैं तो वो हमें ये चीज याद दिलाती है कि नहीं, एक दिन जो है मुझे इस अनसीन के सामने जाके खड़ा होना है और अपने अमल का जवाब देना है। अच्छा, एक और चीज जो कि बहुत जरूरी है यख्शौना रब्बहुम बिल गैब में, जिसको हम में से बहुत से लोग कंसिडर नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं मुझे तो अल्लाह से बहुत डर लगता है, मुझे तो अल्लाह का बहुत खौफ है। तो अल्लाह का खौफ क्या है? अल्लाह का खौफ ये है कि अल्लाह का नाम सुनकर आप जो है वो डरने लगे, रोने लगे, छुप जाएं, कांपने लगे। ये तो अल्लाह का डर नहीं है ना। अल्लाह का डर क्या है? कॉन्शियसनेस, कि यू नो दैट अल्लाह इज वॉचिंग यू, अल्लाह इज वॉचिंग यू। बट अभी हो सकता है कि मैंने अगर कोई चीज चोरी कर ली तो मे बी मैं अभी इस वक्त मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, हो सकता है कि मैं छुप जाऊं, हो सकता है मुझे कोई भी कैच ना करे, मेरी पूरी जिंदगी जो है ऐसे ही निकल जाए और मैं मर जाऊं इस हाल में। लेकिन क्या हमारी ईमान के अकॉर्डिंगली क्या मैं बच जाऊंगी? नहीं। तो एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है अनसीन का, वो ये है कि वी नीड टू नो, वी नीड टू फाइंड आउट कि ये जो जात है, जो अल्लाह की जो जात है, वो हमसे चाहती क्या है। वी नीड टू हैव दैट नॉलेज एज वेल, बिकॉज सम पीपल दे थिंक कि अल्लाह का खौफ, मेरा तो दिल साफ है, मैं तो नेक हूँ, मैं तो किसी का बुरा नहीं सोचता या सोचती, और मैं तो अल्लाह से डरती हूँ, तो इज दैट इनफ? No. You are fearful of Allah, but you don't know what Allah wants. So it's not a win-win situation, is it? तो अगर इसकी मैं एग्जाम्पल, एक दफा मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, एक था कि इमाम अबू हनीफा जो थे, वो एक सबको पता है ना इमाम अबू हनीफा कौन थे, ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर। सो वो एक दफा किसी मार्केट में थे, कूफा की मार्केट में, तो उन्होंने देखा कि एक शख्स को उन्होंने देखा कि वो आया, उसने जो है एक जगह से 10 दीनार जो है वो चुराए, दूसरी जगह पे गया, उसने उस 10 दीनार की जो कोई चीज बाय की और उसको सदका कर दिया पूरे का पूरा। तो इमाम अबू हनीफा ने देखा, इमाम अबू हनीफा उसके पास गए, उन्होंने कहा कि तुमने मेरे सामने अभी 3 काम किए, तुमने चोरी की, तुमने उस चोरी के माल से कुछ खरीदा, और थर्ड तुमने उसको पूरा का पूरा सदका कर दिया, इसकी क्या वजह थी? तो उसने कहा कि मैंने तो ना अल्लाह के साथ डील की है,
میں نے کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے اور جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے 10 گناہ اس کو اس کا 10 ٹائمز اجر ملتا ہے. تو مجھے گناہ تو ایک ملا لیکن مجھے جو نیکی کا اجر ہے وہ 10 ٹائمز مل گیا. میں نے جو صدقہ کیا اس کا مجھے ملٹیپلائی ہو گیا میرا 10 ٹائم سے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں, تمہیں ایکچولی اس نیکی کا کوئی اجر نہیں ملا, تمہارے پاس صرف ایک گناہ رہ گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس شخص نے جو یہ سوچا اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اجر ہے نا, سارا ثواب کا اجر ہے. اس نے ایسا جو کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ That you can carry on doing bad things, but then you do It one good wasn't thing. half information. He didn't have complete knowledge. You know, half a knowledge is worse actually. It's dangerous. He didn't have full knowledge. اس کو صرف ایک پارٹ پتا تھا. جیسے ہم میں سے کچھ لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے, یہ ہے نا کچھ ہمیں بس ہائی لائٹڈ پوائنٹس جو ہیں جو ہمیں کسی نے بس سنتے چلے آ رہے ہیں. ہم میں سے کسی نے یہ چیزیں پڑھی تو نہیں ہے. کسی کو پتا ہے کہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے, یہ کون سی حدیث ہے؟ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہوتا زیادہ تر, unless کہ you start studying. ہم نے جو سنا تھا ہمارے پیرنٹس نے ہم کو سٹوریز سنائی تھی, یا ہمارے ٹیچرز نے سنائی تھی, یا ہماری آپا نے, جن سے بھی ہم نے پڑھا انہوں نے ہم کو کچھ سٹوریز سنا دی تھی, ٹھیک ہے, جس کو ہم نے کبھی بھی ویریفائی نہیں کیا. کیا محمد صلی اللہ, اب جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کنڈیشنل ہے یا انکنڈیشنل ہے؟ کنڈیشنل ہے. کنڈیشنل ہے, ایگزیکٹلی. We have to abide by some conditions. We have to, جب تک ہمیں اس کے لیے ایلیجیبل ہونا پڑے گا. وہ کوئی ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کے لیے نہیں ہے. بٹ ہمیں کیونکہ ہمارا جو آدھا علم تھا نا, آدھی نالج, دیٹ واز ڈینجرس. اس نے ہم کو بہت کمفرٹیبل زون میں رکھا ہوا تھا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے ایک دن تو آپ کی شفاعت ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے, کیونکہ آپ کسی بھی ایکس وائی زیڈ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو بس اب آپ نے تو جنت میں ہی جانا ہے. تو یہ جو ہاف نالج ہوتی ہے, جو لوگ یخشون ربہم بالغیب پہ ایمان رکھتے ہیں نا, وہ ہاف نالج پہ جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے. وہ یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے چاہتا ہے کیا آخر. اگر میں کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں, جب آپ کی شادی ہوتی ہے, آپ کسی جوائنٹ فیملی میں اگر سپوز آتی ہیں تو آپ یہ دیکھتی ہیں کہ میرے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ آخر چاہتے کیا ہیں, ان کی خواہشیں کیا, ان کی لائکس کیا ہیں, ان کی ڈس لائکس کیا ہیں. اگر آپ کا صرف ہسبینڈ بھی ہے, ایک ہسبینڈ بھی ہوتا ہے, تو آپ یہ تو دیکھتے ہو نا کہ اس کی لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں کیا آپ بس صرف ایسی ہوا میں ہی کہ نہیں بس نکاح ہو گیا ختم, اس کو تو میری سننی پڑے گی, اس کو تو میری ماننی پڑے گی, میں بھی دیکھتی ہوں کہ کیسے یہ نہیں خوش ہوتا, جو بھی میں پکا کے کھلاؤں گا کھانا پڑے گا. تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ اس ایک گھر کی ریلیشن شپ میں بھی آپ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہو, تو یہ تو رب کی ریلیشن شپ ہے. تو اس میں بھی جو ہے, جو ہماری جو سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یخشون ربہم بالغیب میں ہم صرف ہم کہتے ہیں ہم تو اللہ سے بہت ڈرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگوں سے, وہ کہتے ہیں بھائی مجھے تو اللہ کا بہت خوف ہے. ٹھیک ہے, تم کو اللہ کا خوف ہے تو تم نے معلوم کیا کہ اللہ تم سے چاہتا کیا ہے, تو اس شخص کی فاؤنڈیشن صحیح نہیں تھی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فاؤنڈیشن ٹھیک ہے کیا, ہمارا جو پیسہ ہے, ہمارا جو مال ہے, ہماری جو انکم ہے, کیا وہ سب حلال ہے؟ اگر وہ حلال نہیں ہے فار ایگزامپل کسی بھی وجہ سے, تو کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس میں سے اگر بہت صدقہ کر لیں گے, میرے مال میں اگر گڑبڑ ہے تو میں اگر 90% صدقہ, میں 99% صدقہ کر دوں, صرف 1% اپنے اوپر خرچ کروں, تو کیا وہ میرے لیے حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو مجھے یہ جو چیز ہے, مجھے اس چیز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کون سی چیز میرے لیے صحیح ہے اور کون سی چیز میرے لیے غلط ہے. جو یخشون ربہم بالغیب والے لوگ ہیں, وہ ان کا یہ جو لرننگ پروسیس ہے یہ ٹل دا اینڈ, ٹل دیئر ڈیتھ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. کیونکہ جو ہمارا جو سب سے بڑا دشمن جو ہے نا شیطان, وہ ٹل آور ڈیتھ وہ ہماری طاق میں رہتا ہے کہ کہاں وہ ہمیں اٹیک کرے. اچھا, تو اوکے, تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یخشون ربہم بالغیب, ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے 2 ریوارڈز ہیں. ان کے لیے 2 ریوارڈز کیا ہیں؟ فرسٹ از نمبر 1 مغفرہ, forgiveness.
And number 2 is Ajrun Kabir, a great reward, a great reward. Okay, what is maghfira? अच्छा, अब अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोगों ने ये चीज कर ली, उन्होंने जो है अपने आप को करेक्ट कर लिया, उन्होंने they excelled in everything. They excelled in their ibadah. They were not just comfortable with their bare minimum कि मैंने बस फजर की फर्ज पढ़ लिए, ज़ोहर फर्ज नमाजों पे वो लोग वो नहीं करते, वो अपनी में एक्सेल करते हैं, वो पहले तमाम सुन्नतें पढ़ते हैं, फिर वो अपनी नफली इबादतें बढ़ाते हैं. इसी तरह होता है ना, इंसान एक्सेल कैसे करता है, वो एक्सेल करते रहते हैं. और किस वजह से करते हैं? क्योंकि यक्षौन और रब्बा, उनको होता है कि नहीं, हो सकता है कि मुझे जैसे जैसे इंसान को ज्यादा नॉलेज होती है उसको होता है हो सकता है मुझसे कोई ऐसा गुनाह पास्ट में हो गया हो जो मुझे याद नहीं रहा हो, नहीं मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि मेरे जो पास्ट वाले जो गुनाह है मेरे इस अमल से वो अल्लाह ताला उनको माफ कर दे. तो उनको वो किस चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं? जब इंसान इतनी एफर्ट करता है तो वो किस चीज के लिए एलिजिबल हो जाता है? मग़फ़िरत. यानी हमने से कोई क्या ये क्लेम कर सकता है कि उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया? No. ऐसा तो नहीं हो सकता, चाहे हम कितनी भी एफर्ट कर लें, बट वी हैव डन सम मिस्टेक्स, वी हैव मेड सम मिस्टेक्स इन द पास्ट एंड वी आर स्टिल मेकिंग मिस्टेक्स एंड वी आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स इन आवर फ्यूचर एज वेल. सो अल्लाह ताला हमारे लिए क्या करेंगे? बिकॉज हमने पीछे क्या पढ़ा था कि अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला हमें क्या चेक करेंगे कि अय्युकुम अहसनु अमला, जो पहले शुरू की जो आयात में यही पढ़ा था ना हमें कि which one of you is best, is doing their best, not the best, their best. यानी ये कि मेरी अंदर जो एबिलिटी है उसके हिसाब से मैंने कितना किया, आपके अंदर जो एबिलिटी है, जिस हर एक की अपनी अपनी एफर्ट और एबिलिटी होती है ना, हर एक को अल्लाह ताला ने एक ही जैसा तो नहीं पैदा किया. किस इंसान के पास 10 पाउंड थे, उसने 10 पाउंड में से 5 पाउंड दे दिए, और किसी के पास मिलियन थे, उसमें से उसने 100,000 पाउंड दे दिए. तो अल्लाह के नजदीक जिसने 5 पाउंड दिए उसने अपनी 50% जो माल था ना वो दे दिया. जिसके पास मिलियंस थे, अगर उसने 100,000 भी दे दिए तो शायद वो कुछ 1% भी नहीं होगा उसके माल का. ठीक है ना? तो अल्लाह ताला क्वांटिटी नहीं देखते, अल्लाह ताला क्वालिटी देखते हैं. तो अल्लाह ताला के लिए फिर वो एलिजिबल हो जाएगा. यानी फिर जो उससे गुनाह हो गए, इतनी एफर्ट करने के बाद उसने हर अपनी पॉसिबल कोशिश कर ली, अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश कर ली, इबादत में वो परफेक्ट रह गया, उसने अपने माल को हलाल रखा, उसने अपनी मॉडेस्टी का ख्याल रखा, उसने पूरी कोशिश की कि मेरे हाथ में ना मैं कोई आंख का ज़िना करूं, ना कान का करूं, कोई भी किस्म की गलत हरकत ना करूं. अल्लाह ताला ने उसको अप्रिशिएट किया. अल्लाह ने जाना कि नहीं, मेरे बंदे ने अपना पूरा बेस्ट किया, उसके लिए मग़फ़िरत हो गई. जब मग़फ़िरत होगी तभी तो नेक्स्ट स्टेप होगा ना. कोई गुनाहगार क्या जन्नत में जा सकता है? नहीं जा सकता. तो पहला स्टेप क्या होगा कि अल्लाह ने उसको माफ कर दिया, अब वो क्लीन हो गया, उसका सारा सब हिसाब क्लियर हो गया, सारी चीजें उसकी साफ हो गई. वह अजरुन कबीर, अजरुन कबीर में आपके हिसाब से क्या चीजें आती हैं? जन्नतुल फिरदौस. सबसे पहले तो जन्नतुल फिरदौस है, अल्लाह ताला का दीदार है. जन्नतुल फिरदौस का भी जो सबसे बड़ा जो इनाम है ना वो अल्लाह का दीदार है. अल्लाह का दीदार मिलेगा, अर्श का साया मिलेगा, अल्लाह ताला आपसे हिसाबन यसीरा लेंगे, बगैर हिसाब के जन्नत में डाल देंगे. हौज़ कौसर है, मतलब ये अजरुन कबीर में वो सब शामिल है. अल्लाह की रजा है, वो सारी चीजें शामिल है, वो सारी चीजें आपको इधर मिल गई. फिर जो आगे अल्लाह ताला कहते हैं, जो नेक्स्ट आयत है, वो अस्सिरु कौलकुम, वो अस्सिरु, ये जो है ना ये इम्पेरेटिव है. ये जो हमने अमर किया था ना, अमर का पैटर्न किया था, ये अस्सिरु जो है ये अमर का पैटर्न है कि हाइड इट. ओके, हाइड इट, वो जो हम कहते हैं ना छुपा लो, छुपा लो, छुपा लो. कौलकुम, योर स्पीच, व्हाटएवर यू आर सेइंग, तुम उसको छुपा लो. अविशहरु यानी या यू प्रोक्लेम, यू अनाउंस इट. Whatever you are saying, either you announce it or hide it. It's आप अपनी जो भी करो. इन्नहु, indeed he, अलीम, all knowing. ये जो अलीम, रहीम, ये वाले जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये जो पैटर्न्स होते हैं ये होते हैं एग्जैजरेशन के पैटर्न्स होते हैं. बसीर, समीर, यानी इसकी कोई आप इसमें इतना यानी इस नॉलेज के बाद कोई नॉलेज है ही नहीं.
यानी अल्लाह इज ऑल नोइंग. आपने छुपा भी ली बात, बट अल्लाह नोज बिजात सुदूर. बिजात यानी व्हाट इज इन आवर चेस्ट. ये जो हमारा रिब केज है ना पूरा, ये चेस्ट में सब आ जाता है. तो जो हमारे अंदर की जो कभी कभी कुछ हमारे अंदर की बातें होती हैं जो कि हम अपने आप से भी कहते हुए शर्माते हैं. कभी कभी ऐसे बुरे ख्याल भी आ जाते हैं, कभी आता है ना, कभी इंसान है, हम सब हैं. हम अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को नहीं, अपनी माँ बहनों को भी नहीं बताते हैं क्योंकि बस हमें पता होता है कि आई डोंट थिंक इट्स शेयरेबल. पर अल्लाह ताला तो वो भी जानते हैं. तो हमारे छुपाने से या हमारे जाहिर करने से फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए कहते हैं ना कि जो सबसे जो बेहतरीन सदका कौन सा है, जो छुप के दिया जाए. क्यों? क्योंकि अल्लाह तो जानता है ना, अल्लाह तो जान लेगा चाहे आपने बताया कि नहीं बताया. तो अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला अपनी क्वालिटी बता रहे हैं कि ये लोग जो है, ये जो यख्शौन रब्बहुम बिल गैब हैं, उनके लिए इतना बड़ा अजर है क्योंकि वो इंसान जो है चाहे वो छुपा के करे या बता के करे, अल्लाह तो हर चीज को जानने वाला है. ठीक है. फिर आप तो यानी जो 12 to 14 की जो समरी है ना, जो हमारा जो ये वाला जो पैसेज है सूरह मुल्क का जो ये पार्ट है, उसमें क्या है कि जो आवर क्रिएटर इज फुल्ली अवेयर ऑफ हिज क्रिएशन. ऐसा हो नहीं सकता कि जो चीज जिसने जो चीज बनाई हो उसके बारे में जानता नहीं हो. और हमारे लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी नीड टू बी कॉन्शियस ऑफ आवर क्रिएटर. और दिस इज अ लाइफ स्टाइल ऑफ मोमेंट. आप ये नहीं हो सकता कि आप जब दर्स में गए हैं और मस्जिद में गए हैं या जब उम्रा करने गए हैं और हज करने गए हैं तो आपका लाइफ स्टाइल कुछ और है, और जब आप किसी मेहंदी में या शादी में गए हैं तो आपका लाइफ स्टाइल कुछ और है. ऐसा ये नहीं है. इसको क्या बोलते हैं? इसको हिपोक्रेसी बोलते हैं. और अल्लाह ताला ये नहीं कहते. अल्लाह ताला कहते हैं कि किसी भी वक्त, क्योंकि तुम किसी भी हाल में जब हो, मैं तो तुमको देख ही रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे अमल को. और फिर जो है जब ये इस लाइफ स्टाइल पे जब आ जाओगे कि वी आर अवेयर ऑफ आवर क्रिएटर एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ हिम अराउंड अस, देन आवर रिवॉर्ड इज दीज टू थिंग्स. अच्छा. और अच्छा, फिर जो नेक्स्ट आयत है उसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अला यअलमु मन खलक. अला इज अ क्वेश्चन वर्ड है, इधर एज अ क्वेश्चन यूज हुआ है. अला यअलमु, वुड ही नॉट नो, मन हु खलक क्रिएटेड. यानी क्या वो नहीं जानेगा जिसने पैदा किया, जिसने तख्लीक किया. वहुवल लतीफुल खबीर. एंड हुआ ही लतीफ इज परसीविंग, ऑल परसीविंग, जिसको कहते हैं कि माइन्यूट डिटेल्स भी जो जानता है ना उसको लतीफ कहते हैं. और खबीर जो है ये भी वही पैटर्न है कि अवेयर ऑफ एवरीथिंग, ही इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग. सो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या वो नहीं जानेगा जिसने पैदा किया, जिसने तख्लीक किया. कभी कभी आप अपने बच्चों को बोलते हैं ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुमको पैदा किया है, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ. कहते हैं ना कभी कभी बच्चों को, जब बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनको बोलते हैं कि तुम मुझसे नहीं छुपा सकते, मुझे पता है कि तुम अभी क्या सोच रहे हो या तुम क्या करके आए हो. हम बच्चों को ये कहते हैं. तो अल्लाह ताला तो हम सबका क्रिएटर है. जब हमारी कोई चीज, हमारा प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल हमारी कोई कैनवुड की मशीन है, जब वो कैनवुड की मशीन अगर खराब होती है तो आप कौन से मैनुअल को देखते हो? Instructions. कैनवुड का ही देखते हो ना. फिर आप क्या डायसन का मैनुअल उठा के देखते हो कभी? नहीं. आपके पास अगर आईफोन है तो आप क्या सैमसंग का मैनुअल निकाल के देखोगे या आईफोन का निकालोगे? आईफोन. जो फोन आपके पास है आप उसी का मैनुअल निकालोगे ना. तो यानी क्यों निकालोगे? क्योंकि आपको पता है कि जिसने ये प्रोडक्ट बनाया है वो ही इसके बारे में सबसे ज्यादा जानता है. तो हमारे बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अल्लाह ताला जानते हैं. तो जो अल्लाह जो जानते हैं, तो अल्लाह ताला ने जो चीजें भी हमारे लिए हमें करने को बोली है ना, और जो हमें बोली है कि जो नहीं करो, वो इस बेस पे बोली है कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल है. कभी कभी वो हमें नजर आ रहा होता है और कभी कभी ज्यादातर वो हमें नजर नहीं आ रहा होता. और क्यों नजर नहीं आ रहा होता? क्योंकि अगर आप पिछली आयतों में जाएं तो हमें क्या पता चलता है क्यों हमें नजर नहीं आ रहा होता है? तो आपकी बेहतरी के लिए. लियब्लुवकुम, बिकॉज अल्लाह ताला हमें टेस्ट करना चाहते हैं. जो हमने शुरू के आगे पढ़ा था, लियब्लुवकुम, ताकि वो हमें टेस्ट करे. ये हमारा टेस्ट है. और इस टेस्ट ये एक्चुअली दुनिया जो है ना हमारा एग्जामिनेशन हॉल है. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि या अला यअलमु मन खलक, क्या वो नहीं जानेगा जिसने क्रिएट किया? और वो तो
एक एक जो तुम्हारी जो माइन्यूट डिटेल्स है ना उसको भी जानता है। अल्लाह ताला तो ये भी जानते हैं कि कभी कभी जो हम दुआ मांग रहे होते हैं ना, कभी कभी हमारी दुआ फौरन कबूल हो जाती है, और कभी कोई दुआ ऐसी होती है कि जिंदगी भर मांग लो नहीं पूरी होती। ऐसी दुआएं कभी होती है ना, हमारी हर एक की जिंदगी में होती है। आपको लगता है कि इस दुआ के ना कबूल होने में क्या मसला है, क्यों नहीं हो रही? इसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, इसके पास है, उसके पास है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? एक नॉन मुस्लिम के पास भी है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अल्लाह यालमु मन खलक, उसने हमें क्रिएट किया है, वो जानता है कि वो शायद हमारे लिए सूटेबल नहीं, शायद यकीनन वो हमारे लिए नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी हमारा बच्चा कितना भी रोले, हम उसको वो टॉय नहीं दिला देते, या वो चीज, वो गैजेट या वो ऐप उसको डाउनलोड नहीं कर देते। क्यों? Because it's not good for him. इट्स नॉट गुड फॉर हिम। उसको शायद उस वक्त समझ में नहीं आ रहा होता, तो हमारी भी जो दुनिया में हालत होती है हमें समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि जितनी भी आपकी जो अनहर्ड दुआएं हैं ना, दे आर नॉट वेस्टेड। सो डोंट थिंक ओके अब नहीं हो रहा तो हो सकता है अल्लाह ने तो जो है डिसाइड कर लिया कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है तो अब मैं मांगू ही ना। ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए। वी हैव टू कैरी ऑन आस्किंग। अगर हम अपने नबियों को देखें, आप हजरत इब्राहिम को देखें, हजरत जकरिया को देखें, उन लोगों को 100+ एज में औलाद मिली है। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि उन्होंने औलाद मांगते रहे, लेकिन जब अल्लाह ने समझा कि सूटेबल है, अल्लाह ने दे दिया। उन्होंने स्टॉप किया जब हजरत जकरिया ने सोचा कि अब तो 70 इयर्स का हो गया हूँ, अब बच्चे को बड़ा कैसे करूंगा, उसको खिलाऊंगा कैसे कि उसके पैदा होने से पहले मैं मर ना जाऊं। तो क्या उन्होंने दुआ मांगनी छोड़ दी? नहीं छोड़ी, वो मांगते रहे, क्योंकि उनका काम था मांगना और अल्लाह का काम था देना। कब देना ये अल्लाह ताला जानते हैं। फिर नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं हुवल्लज़ी। अच्छा, अब जो पैटर्न है ना, यहाँ तक 14 तक का पैटर्न क्या है कि अल्लाह ताला ये बता रहे हैं आपको कि जो लोग, एक तो पहले जो पिछला में था उन लोगों का बिहेवियर जिन्होंने कुफर किया, उनके साथ क्या होगा कि उनके साथ उनका सीन दिखाया गया है कि जहन्नम के बाहर जब वो खड़े हुए होंगे तो उनको एक फ्लैशबैक नजर आएगा, उनको सब याद आएगा कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की थी। लेकिन उस वक्त जो है इट विल बी टू लेट, उस वक्त कुछ हो नहीं सकेगा। लेकिन उसके बाद वाली 12 to 14 में अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? मोमिनों का हाल बता रहे हैं। लेकिन मोमिनों का कहाँ का हाल बता रहे हैं? दुनिया का, कि उनका दुनिया में लाइफस्टाइल क्या था। और उनका लाइफस्टाइल क्या था? यख्शौना रब्बहुम बिलगैब, यानी वो हर वक्त अपने रब से कॉन्शियस रहते हैं। फिर आपका जो है नेक्स्ट जो है वो अल्लाह ताला बता रहे हैं, अब जो है ना अल्लाह ताला आपको वो चीजें जो रियलिटीज ऑफ लाइफ जो हमारे इर्द गिर्द जो है वो जो हर वक्त हो रही होती हैं, जिन्होंने वो जिन ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो उनसे ना बेनिफिट करता है ना उनको एक्सपीरियंस करता है। आपकी जो सनलाइट है, सनसेट है, सनशाइन है, मून है, माउंटेन्स हैं, ट्रीज हैं, स्काईज हैं, सीज हैं, सोलर सिस्टम है, स्पेस है, ये सारी चीजें जो है इनसे हम सब बेनिफिट करते हैं। ये सब हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, लेकिन ये इतना परफेक्टली हो रहा है और इतना मतलब विदाउट स्टॉपिंग हो रहा है कि हमें लगता है कि दिस इज पार्ट ऑफ सिस्टम और हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम कभी भी यही सोचते कि अगर किसी दिन ये सिस्टम स्टॉप कर गया तो क्या होगा, उस दिन क्या होगा? Everything will be stopped. दुनिया एंड हो जाएगी। दुनिया एंड, उस दिन तो कयामत आ जाएगी ना। जिस दिन ये सिस्टम एंड हो गया उस दिन तो कयामत आ जाएगी। जिस दिन सनराइज अपनी टाइम पर नहीं हुआ तो उस दिन तो कयामत ही आ जाएगी ना। तो यही चीजें जो ये जो हमने इसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, लेकिन ये अल्लाह का सिस्टम है। तो अल्लाह वन बाय वन हमको अब बता रहे हैं कि हुवल्लज़ी, हुआ इज ही, अल्लज़ी द वन हु, जअला इज ही मेड, लकुम फॉर यू, अल अर्थ इज, व्हाट इज अल अर्थ? द अर्थ, ज़लूलन यानी सबमिसिव। अर्थ जमीन जो है हम उस पर चल रहे होते हैं, हम यानी जो मर्जी होती है ना हम करते हैं। अल्लाह ताला ने जमीन को हमारी अताअत करने वाला बना दिया है। हम जमीन में जो भी चीज प्लांट करते हैं, फिर उसमें से फ्लावर्स निकलते हैं, फ्रूट्स निकलते हैं, वेजिटेबल्स निकलते हैं। हम जमीन में डिग करते हैं, उसके अंदर से पता नहीं हमें क्या क्या जो है वो चीजें मिलती हैं, माइंस होती हैं, उसमें से गोल्ड निकलता है, कोल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, ऑयल निकलते हैं, क्या क्या निकलता है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए उस चीज को अलाउ कर दिया है। लेकिन जिस चीज को अल्लाह ताला ने अलाउ नहीं किया हम वो नहीं कर सकते, उसमें भी अल्लाह ने हमारी एक लिमिट रखी
की है. हमने कुरान में पढ़ा है कि ज़ुल्करनैन ने याजूज और माजूज के लिए एक वॉल बना दी है. सूरह काफ में पढ़ते हैं ना हर फ्राइडे को कि ज़ुल्करनैन ने एक वॉल बना दी है जिसके पीछे याजूज और माजूज हैं. 100,000 of years गुजर गए, क्या किसी को आज तक पता चला कि वो वॉल है कहाँ? पता कि दुनिया में है, इसी दुनिया में है, कहीं ना कहीं तो है ना वो, लेकिन हम आज तक हमें नहीं पता. हमें तो पता ही नहीं है कि वो वॉल का है, लेकिन याजूज माजूज तो उस वॉल के पीछे हैं, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं तोड़ सकते जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी. यानी अल्लाह जो भी दुनिया में होता है ना वो अल्लाह ही की मर्जी से होता है, और जिस दिन अल्लाह ताला चाहेंगे तो वो वॉल भी टूट जाएगी और वो लोग बाहर भी आ जाएंगे. ठीक है ना. तो अल्लाह जो हम जमीन जितनी हमारी अतात करती है उतनी ही करती है जितनी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है. हम एक लिमिट तक डिग कर सकते हैं, उसके नीचे हम डिग नहीं कर सकते. हम एक लिमिट तक कोई चीज प्लांट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते. कभी कभी एक ही सीड जो होता है उसको एक जगह पे डालो तो उसमें से इतना बड़ा ट्री निकल आता है, दूसरी जगह डालो तो कुछ भी नहीं होता है ना ऐसा भी. तो ये भी अल्लाह ही की मर्जी होती है. तो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ने जमीन को सबमिसिव बना दिया, फमशू, तो तुम उस पर चलते फिरते हो. हम अगर जमीन कहते हैं कि जमीन चल रही होती है, अगर जमीन चल रही होती है और हम भी इस पे चल रहे होते हैं तो दो चीजें अगर चल रही हो, अब एक्सेलरेटर जो होता है चल रहा होता है और आप उसको उल्टी तरफ से चलना शुरू कर दो तो क्या होगा? गिरोगे ना, आप गिर जाओगे. लेकिन अल्लाह ने जमीन का सिस्टम, हम सबको पता है, साइंस ने भी ये बात प्रूव कर दी है कि जमीन जो है वो मूव कर रही है, लेकिन हम गिरते हैं जब हम चलते हैं, हमें फील भी होता है इसकी मूवमेंट को, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको हमारे लिए पॉसिबल कर दिया. और ये चीजें इतना हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम कभी इन चीजों के बारे में सोचते भी नहीं है. और फिर अल्लाह कहते हैं कि फी मना के भी हाथ, यानी हम उसकी साइड्स पर हम चलते हैं. और फिर अल्लाह कहते हैं कि वकुलू मिन रिज़्क़ी, और तुम सब जो है यू ऑल ईट फ्रॉम हिज प्रोविजन. यानी ये प्रोविजन किसका? रिज़्क़ी ही. प्रोविजन किस चीज की प्रोविजन? किसका प्रोविजन? रिज़्क़ी ही. प्रोविजन अल्लाह का प्रोविजन, अल्लाह का प्रोविजन. तो हम सब जो है अल्लाह के प्रोविजन में से खाते हैं. वो इलैहि नुशूर, और टुवर्ड्स हिम नुशूर, हम सब ने एक दोबारा से हम एक दफा सब उठाए जाएंगे. यानी इसी जमीन में हम जाएंगे और इसी जमीन से हम, ये जो जमीन है अगर देखा जाए तो हमारी जिंदगी, हम बने भी मिट्टी से, अल्लाह ने बनाया भी हमें मिट्टी से, और हमें मिलना भी जाके एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है. हमें दफन भी मिट्टी में ही किया जाएगा ना जब हम मर जाएंगे, और फिर हमें उठाया भी इस मिट्टी से ही जाएगा. तो यानी जो जमीन है ये कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ में, हमारी पैदा होने से पहले भी, हमारे पैदा होने के बाद भी, और बाद में जब हम क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाएंगे. फिर आगे अल्लाह कहते हैं अमिन तुम, यानी ये कि यू ऑल बिकेम सेफ सिक्योर, यानी तुम बेखौफ हो गए इस बात से कि मन हु समाई, जो आसमान में, फी का मतलब होता है इन, फी इन असमाई स्काइज, आई दैट, कि क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए कि यख्सिफा, कि जमीन जो है सिंक करने का, यख्सिफा मीन्स होता है टू सिंक, दैट ही कॉज इट टू सिंक, बिकुम विथ यू अल अर्द जमीन, फइजा, सो दैट या शी तमूर, इट शेक्स अवे. यानी ये कि क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए कि इस जमीन में अगर अर्थक्वेक आ जाए तो वो तुम्हें लेके कहाँ, जब अर्थक्वेक हम सुनते हैं, जब आते हैं दुनिया में अर्थक्वेक, तो क्या होता है? तबाही होती है ना. अगर सोचे कि पूरी दुनिया में अर्थक्वेक आ जाए एक साथ तो क्या होगा? कोई भी बचेगा क्या? नहीं. और कयामत के वक्त होगा भी ऐसा ही कुछ, जब कयामत आएगी तो ऐसा ही कुछ होगा ना. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम क्या इस बात से बेखौफ हो गए हो कि तुम इस जमीन को तुम अपने आप को आप इस जमीन का मालिक समझ बैठे हो, कि तुम जो है तुम्हारी, मतलब तुम अब इस जमीन के मालिक हो और तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, तुम जो मर्जी है करोगे. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि जिसने जमीन को तुम्हारे बस में दिया है वो तुम्हारे लिए एक अर्थक्वेक से तुम्हारे लिए सब कुछ वाइप आउट कर दे. और सेकेंड आयत में कहते हैं अल्लाह के अमीन तुम, क्या तुम इस बात से भी बेखौफ हो गए हो कि मन फिस समाई, द वन हु इज इन द स्काई, अयुरसिल अलैकुम, के ही सेंड्स ऑन यू हासिबा, एक आपके ऊपर एक स्टोनिंग हो जाए, आसमान से पत्थर बरसने लगे. फसतालमूना कैफ नज़ीर, फसतालमूना कौन सा टेंस है?
Present. present. future. Imperative. फ्यूचर जो चीज बनाते हैं तो वो हम क्या ऐड करते हैं, सा ऐड करते हैं ना बिगनिंग में. फसतालमूना, इधर देखो इसके ट्रांसलेशन में भी ये लिखा है कि देन दे विल सून नो. कैफ नज़ीर कि व्हाट वाज दैट वार्निंग. अगर आसमान से अल्लाह ताला हर वक्त पानी बरसाते हैं ना, ठीक है, हम तो आसमान से इसी चीज पे यूज्ड हुए हैं कि आसमान से बारिश उतरता है. और ये जो वाटर साइकिल है ये भी अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी नेमत है, कितना परफेक्शन है इस वाटर साइकिल में भी कि एक ही एक अमाउंट जो है उसमें उसका वो इवेपोरेट होता है, एक अमाउंट जो है उसका कंडेंसेशन उसका होता है, कुछ स्टोर होता है, और वो परफेक्टली वो जो बैलेंस होता है, ये जो वाटर साइकिल, उसी के बेस पे हमारी जिंदगी चलती है, हमारी जो वेजिटेशन है, हर चीज जो है वो बैलेंस होके उसी के हिसाब से चलती है. तो अगर किसी दिन ऊपर से पत्थर बरसने लगे तो क्या ऐसा नहीं हुआ पहले? हुआ है. कैसे पता? कुरान में है ना, किसी पे जब वो कौमों के साथ हुआ है, कौमों के साथ हुआ है, कौमों के साथ अजाब के तौर पे ये चीज हुई है कि आसमान से पत्थर बरसते हैं. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि तुम्हारे की पत्थर बरसने लगे आसमान से. फिर आगे की आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वलक़द कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कैफ़ कान नकीर. वलक़द, एंड सर्टेनली और इंडीड, कज़्ज़बा denied allazina those min qablihim before them fakaifa, so how was the denial. यानी ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है जिन पर अजाब आया. यानी इन लोगों ने भी क्या किया था, इन्होंने भी यही उनका पैटर्न था कि उन्होंने अल्लाह की मैसेज को, अल्लाह की साइंस को, अल्लाह के मैसेंजर्स को, अल्लाह के जो ऑर्डर्स थे, कमांड्स को उन्होंने झुटलाया था, और उनके साथ भी यही हुआ था. तो अल्लाह ताला जो है अब ये बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे साथ सिर्फ आसमान जो नॉर्मल लाइफ गुजर रही है ये तो एक तुम्हें नजर आ रही है, लेकिन इसका ऑपोजिट भी हो सकता है. जमीन जो है हर वक्त तुम उस पर अपनी मर्जी मनमानी करते हो, लेकिन किसी दिन जमीन पे अर्थक्वेक आ सकता है. आसमान से तुम्हारे लिए जो है हमेशा बारिश आती है, लेकिन कभी आसमान से तुम्हारे लिए पत्थर भी आ सकते हैं. और ये वो चीज है जो पहले भी हो चुकी है उन लोगों के साथ जो तुमसे पहले थे, और जो है उन्होंने इन चीजों को रिजेक्ट किया, इन वार्निंग्स को उन्होंने रिजेक्ट किया. आगे का जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक करेंगे. बस यहाँ पे आयत नंबर 18 पे हम जो है यहाँ स्टॉप करते हैं. तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो या कुछ क्विज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले. क्विज कितने लोगों ने किया? मैंने अभी फौरन जो है लास्ट 1 घंटे में मैंने चेक नहीं किया कि कितने लोगों ने किया है या नहीं किया. मैंने किया बस अभी, मतलब क्लास शुरू होने से. इसका मकसद सिर्फ ये था, ये मकसद नहीं था कि किसको कितने मार्क्स, किसका स्कोर किया है. इसका मकसद ये था कि लोग जो हैं आप रिविजिट करो इन आयात को, आप देखो कि ये इनका मतलब क्या है. जब हम इसको बार इंटरनलाइज, सूरह मुल्क उसी वक्त हो सकती है जब हमें उसका एक एक वर्ड का मतलब पता हो, हम जानते हो कि अल्लाह ताला उसमें क्या कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने क्या क्या डिफरेंट मैसेजेस दिए हैं, अल्लाह ताला ने इसमें कितने पार्ट्स हैं सूरह मुल्क के, इससे हमें, और हम जब रात को सोने से पहले इसको पढ़ते हैं तो हमें किन किन चीजों के बारे में सोचना है. और सूरह मुल्क जो है ऐसे ही रैंडमली, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही रैंडमली एक सूरत बोल दी कि चलो इसमें 30 आयतें हैं तो मैं बोल देता हूँ कि बस रात को पढ़ो तो तुमको वो जन्नत से, वो जो है तुम्हें जहन्नुम से बचा लेगी या कब्र में तुम्हारी हेल्प करेगी? नहीं, इसकी हमें पर्पस समझ में आता है कि जो कोई सूरह मुल्क को समझ के पढ़ेगा और उसके मैसेज को इंटरनलाइज करेगा तो जाहिर है वो आपको कब्र के अजाब से बचाएगी ना. आप खुद ही अपने आप को करेक्ट कर लोगे दुनिया में, तो आप अपने आप को खुद ही तो अजाब कब्र से जो है, जहन्नुम के अजाब से, अल्लाह की नाराजगी से आप कर लोगे. और फिर जब आपसे जो गलतियां हो गई होंगी उस सब चीजों को फॉलो करने के बावजूद, तो उस वक्त सूरह मुल्क लड़ेगी आपके लिए, आपके बिहाफ पर कि नहीं, इसने पूरी कोशिश की थी. तो इसको जो है इसका हक बनता है कि इसकी शफाअत की जाए, इसको इस अजाब से निजात दी जाए, अगर किसी गुनाह की वजह से वो इन्वॉल्व हो भी गया. तो हमें इसको जो है, मैंने जो क्वेश्चन डाला था उसमें काफी लोगों ने ये लिखा है कि जो उसको पढ़ेगा वो द रीडर, नहीं, दिस ये जो इट इज फॉर द वन हु विल मेक इट्स साहिब के लिए, उसके कारी के लिए नहीं है.
ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے پہلے لیسن میں کیا تھا کہ سورہ ملک اس کی شفاعت کرے گی جو اس کا صاحب بن جائے گا. اور صاحب کون ہوتا ہے؟ کمپینین. ہم صاحب اصحاب کی بات کرتے ہیں نا, صحابہ کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں بھی سورہ ملک کا صحابی بن جانا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوشچن تو اور کچھ ہے, کسی کو کچھ پوچھنا نہیں ہو تو پھر میں یہ اینڈ کر دیتی ہوں. مریم یہ میں نے یہ کوشچن میرا انکریکٹ تھا, وہ جعلنا ہے اس میں یہ تاکہ اس میں کتنے ورڈز ہے, تو میں نے 3 کیے تھے اور کریکٹ کوشچن جو تھا وہ 4 تھا, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اوکے. جعلنا جعلا 2, نا ہم, اس 3, ہا ہر 4. جعلا نا ہا 4 ورڈز ہو گئے نا. جی وجعلنا, اسی لیے یہ اس لیے اس میں تھے 4 ورڈز. تو اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو, ادروائز وی وونٹ بی ایبل ٹو ٹرانسلیٹ اٹ پراپرلی کہ ایک ورڈ جو ہے اس میں کتنے ورڈز آ رہے ہیں. اتنی عربک ہم نے الحمدللہ ضرور کر لی ہے کہ وی نو کہ ایک ورڈ کے اندر کتنے ورڈز ہیں, ایٹ لیسٹ ہم اس کو بریک ڈاؤن تو کر سکتے ہیں. اور تو یہ سوری یہ عین اور لام جو ہے یہ جزم پہ ایک ہو گیا ہے, جزم کے ساتھ. کون سا ورڈ؟ وجعل, عین اینڈ لام. ہاں تو یہ تو ہوتا ہے نا, بیکاز جب آپ ورڈز کو کمبائن کرتے ہو, یہ تجوید کے قاعدے ہوتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے اس کو آپ سکون دیتے ہو, ورنہ وہ بولے نہیں جاتے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو پریکٹس کے ساتھ آئے گا. اچھا, لیبلوکم یہ تو ٹھیک تھا میرا, لیکن اس میں مجھے 4 ورڈز لگ رہے ہیں. کہ کیوں 4 ورڈز لگے؟ لی 1, یبلو 2 اور کم 3. نہیں, لی ایک, یب سیکنڈ, لو تھرڈ اینڈ کم. یب کوئی ورڈ نہیں ہے, یب کوئی ورڈ نہیں ہے. میں نے بتایا تھا کتنے لیٹر کا وہ ہوتا ہے منیمم 3 لیٹر, تو یب تو 2 لیٹرز ہو گئے. اچھا, یب تو وہ تو پھر آپ کا پارٹیکل ہو جائے گا, حرف ہو جائے گا. تو ورڈ جو ہے وہ 3 لیٹر ہی ہوتا ہے منیمم. تو یبلو تو جو وہ الگ ہو گیا یبلو, اور کم جو ہے وہ 3rd ورڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, جزاک اللہ خیر. تو سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.